Good morning, dear students. So, today we'll begin with quantum numbers. You all know that electrons are present inside an atom. So, if we want to find their exact position, like in which shell an electron is present and inside the shell, to which particular subshell does it belong? So, there are certain numbers known as quantum numbers which give us the exact position of an electron inside an atom. Now these numbers can be defined as they explain the orientation of an electron in an atom. In other words, they give the complete address of an electron inside an atom. So talking about the types of quantum numbers, there are four. The first is principal quantum number, which is represented by small n. Second is azimuthal by small l. Next is magnetic quantum number, represented by small m. And the last one is spin quantum number, which is represented by small s. Now, this principal quantum number tells you about the shell in which a particular electron is present. See, you all know there are certain shells designated by K, L, M, N and so on. The K shell is given number 1, L is 2, M 3, N 4 and so on. So these numbers 1, 2, 3, 4, they are known as principal quantum numbers. Next we have azimuthal quantum numbers. These numbers tell about the subshell of an electron. Inside any shell we have subshell. So in the first shell there will be one subshell, in the second shell there will be two subshells, in the third shell there will be three subshells, in the fourth shell there are four subshells and so on. So these are subshells given here S, P, D, F, इसके बाद आएगा G, H, I and so on. उनकी वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है. So these many are sufficient. So these are the subshells S, P, D, F. S is given number 0, P is 1, D 2, F 3. So these quantum numbers will tell you this about the subshell. Next comes magnetic quantum number, which tells you about the orbital where electron is present. Now in case of S there is 1, in case of P there are 3, in D there are 5, in F there are 7. तो ये odd number होता है, you can remember this way. Now talking about this magnetic quantum number, what you need to remember is कि अगर ये single orbital है आपके पास, this is given the number 0. In case of P there are 3, the middle one is assigned 0, left में आ गया -1, right we have +1. Similarly in case of D there are 5 orbitals, the middle one is 0, फिर ये हो गया -1, -2, this side we have +1 and +2. Last comes the spin quantum number, which tells about the spin of an electron. An electron moves on its own axis, which can be clockwise as well as anti-clockwise. So if it moves clockwise, its value is +12. In case the movement is anti-clockwise, the value is -12. Now we can also find the possible values of these quantum numbers. For n is the principal quantum number, जो कि बताता है shell के बारे में. See, shell can never be 0, या तो first shell या second या third या fourth and so on. So the value of n starts from 1 and it goes on. But remember that n can never be equal to 0. हम कभी ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन 0th वाली शेल में है. Now to find the value, possible values of L, ये होता है 0 to n-1. तो अगर n की वैल्यू 1 है, L would be 0. If n is 2, L हो जाएगा 0 and 1. If n is 3, it would be 0, 1, 2. And if n is 4, L would be 0, 1, 2, 3. तो हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन n से हमेशा छोटा रहेगा. L can never be equal to n. It will be 1 less than the given value of n. Then comes m. m होता है -L2 plus L including 0. ये अभी हम numerical solve करेंगे तो you'll come to know. Then we have spin. Spin has only two values. It can be +12 or -12. Then we have some important points. Principal quantum numbers gives the size and energy of an orbital. तो ये शेल के बारे में तो बताता ही है. एट द सेम टाइम इट टेल्स अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल. So one thing you need to note here is energy of orbital increases with increase in the value of n.
बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव न्यूक्लियस। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट वाली शेल में है तो इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब अगर वो सेकेंड शेल में जाता है तो आप पॉजिटिव न्यूक्लियस से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जा रहे हो, सो मोर एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड. So therefore, as the value of n increases, the energy also increases. Then talking about azimuthal quantum number, it is also known as orbital angular momentum or subsidiary quantum number. It defines the shape of orbital. तो ऑर्बिटल की कैसी शेप रहेगी ये आपको पता चलेगा फ्रॉम एजिम्यूथल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पाशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है एक्स वाई एंड जेड, तो उनके रिस्पेक्ट में जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. देन अगेन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट नोट, ये अभी हमने डिस्कस किया भी था कि शेल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल्स. अगर आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो तो इट विल हैव ओनली वन सब शेल, वो हो जाएगा 1s. सेकेंड शेल में देर विल बी 2 सब शेल्स, वो होगा 2s एंड 2p. थर्ड शेल में 3 सब शेल्स spd. फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स spd एंड f. Look at this example now, problem 2.17. What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equals to 3? n इक्वल टू 3 का मतलब हो गया दे आर टॉकिंग अबाउट थर्ड शेल. अब थर्ड शेल का मतलब वहाँ पे टोटल 3 सब शेल्स होंगी. कौन कौन सी? वन वुड बी 3s, एक हो गया 3p, नेक्स्ट वुड बी 3d. अभी आपको बताया था फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड में 2, थर्ड में 3. तो दे हैव गिवन यू थर्ड शेल, सो देर आर दीज 3 सब शेल्स. अब s का मतलब हो गया 1, p का मतलब हो गए 3 ऑर्बिटल्स एंड d मीन्स देर आर टोटल 5 ऑर्बिटल्स. तो ये भी आपको बताया था कि ऑड नंबर होता है s में 1, p में 3, d में 5, f होता तो देर वुड हैव बीन 7. तो टोटल ऑर्बिटल्स आपसे पूछे हैं तो 1 + 3 + 5, तो ये टोटल हो गए 9. वी हैव वन मोर क्वेश्चन हेयर. यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. तो फर्स्ट इज गिवन n2 l1. देखो अब यहाँ आपको याद रखना है कि 4 सबशेल्स हैं हमारे पास SPDF, S0, P1, D2, F3. तो बस इसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे 2 का तो 2 ही रहेगा. L1 का मतलब क्या हुआ? दे आर टॉकिंग अबाउट P, तो ये हो गया 2P. दिस इज द आंसर. N इज़ 4, L0. L0 का मतलब क्या हुआ? ये L की वैल्यूज़ हैं सारी, तो L0 का मतलब हो गया S, तो दिस इज़ 4S. N5 है, L3 है, L3 मीन्स व्हाट? F, तो ये हो गया 5F. दिस वे. लास्ट N3 L2. L2 का मतलब हो गया D, तो दिस इज़ 3D. So this way you can solve the questions. We have some more questions from NCERT. Question number 24. What is the lowest value of n that allows g orbitals to exist? तो फिर से वैसे फर्स्ट शेल में s, सेकेंड शेल में sp, थर्ड शेल में spd, फोर्थ शेल में spdf और फिफ्थ शेल में हो जाएगा spdfg. तो पहली बार g किस में आएगा? फिफ्थ वाली शेल में. तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n हो गया 5. An electron is in 3D orbital. Give possible values of n, l and m. अब यहाँ गिवन है आपको 3D, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? जो ये नंबर होता है ये देता है वैल्यू ऑफ n एंड दिस अल्फ़ाबेट, दिस लेटर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ l. तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हो गई 3 और जो l है l इज़ इक्वल टू d. d का मतलब क्या होता है? 2. तो l की वैल्यू हो गई 2. अब इस 2 से आप फाइंड करोगे द वैल्यू ऑफ m. देखो हमने अभी डिस्कस की थी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर्स. अगर आपको l पता हो तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? -L2 + l इंक्लूडिंग 0. तो अब यहाँ पे l की वैल्यू आपके पास l की वैल्यू 2 है, देयरफॉर m वुड बी -2 to +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2. ये आप ऐसे समझ सकते हो. d ऑर्बिटल है, d के केस में हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ये 5 उसकी वैल्यूज़ हो गई -2 to +2. देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 28.
यहाँ पे सिर्फ आपको शेल नंबर दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड शेल, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। अब n इक्वल्स टू 3 का मतलब हो गया थर्ड शेल, लेकिन अब यहाँ पे सब शेल नहीं बताया उन्होंने, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन बोला था कि इट्स प्रेजेंट इन द D सब शेल, बट यहाँ पे सब शेल की कोई बात नहीं हुई है, दे हैव जस्ट गिवन यू द थर्ड शेल। अब थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स हो सकती हैं, सो इट कैन बी 3s, 3p और 3d। s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2। रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम नंबर्स, तो आप ऐसा कोई आंसर मत लिखना बिकॉज यू हैव टू असाइन नंबर्स टू एवरीथिंग। तो पॉसिबिलिटीज़ तो इनकी हैं 3s, 3p, 3d, बट नंबर्स क्या होते हैं, s का 0, p का 1, d का 2। अब आपको फाइंड करना है m। m हम फाइंड करते हैं फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ l। अब यहाँ पे l की आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो आप 3 बार m फाइंड करोगे। सो इफ़ l इज़ इक्वल टू 0, m हो जाएगा 0। इफ़ l इज़ इक्वल टू 1, m होगा -1 to +1। इफ़ l इज़ इक्वल टू 2, m वुड बी -2 to +2, और बीच में 0 इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3d ऑर्बिटल, तो ये तो ईजी है, ये 3 हो गया n, और जो d है यहाँ से आपको मिल जाएगा l, तो s p d यानी कि 0, 1, 2, तो l की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, 1p। अब 1p का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू कितनी होगी, s p d 0, 1, 2, सॉरी s p 0, 1, तो l हो गया 1। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज l कैन नेवर बी इक्वल टू n, l हमेशा n से छोटा होता है। यहाँ क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। 2s, n हो गया 2, s का मतलब l की वैल्यू हो गई 0, तो येस दिस इज़ पॉसिबल। 2p, n इज़ 2, l हो गया 1, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज l इज़ स्मॉलर देन n। नेक्स्ट आता है 3f, n हो गया 3 और l आएगा spdf 0, 1, 2, 3। Again both of these are equal, therefore this is not possible. Now question number 29 and 30 from NCERT is your homework. Let's move to the next question. How many electrons are possible with n equal to 4 and spin equal to -12? तो spin को वैसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, बट m s से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, तो ये कंडीशन आपको गिवन है। अब देखो n इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ शेल। अगेन यहाँ पे सब शेल की कोई बात नहीं हुई, तो फोर्थ शेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 सब शेल्स होंगी, कौन कौन सी, s p d एंड f। तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, f में 7। अब साथ में एक कंडीशन दी है कि स्पिन जो है -12 लेनी है। नाउ यू मस्ट नो वन थिंग कि किसी भी एक ऑर्बिटल, एक इस बॉक्स के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक हम शो करते हैं ऊपर की तरफ, एक शो करते हैं नीचे की तरफ। So this in upward direction has the spin +12 and the electron in downward direction has the spin -12। अब उन्होंने क्या बोला कि स्पिन आपको सिर्फ -12 लेनी है, तो -12 वाला तो 2 में से सिर्फ एक ही है, तो यानी कि हर एक इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी स्पिन -12 होगी, या ऐसा कह लो जिसे हम नीचे की तरफ शो करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 and 7 हो गया 16। दिस इज़ द लास्ट पार्ट नाउ, n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल टू 0। अब n3 का मतलब हो गया थर्ड शेल और l0 का मतलब हो गया s, तो दे आर टॉकिंग अबाउट 3s। 3s में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देयरफॉर इन दिस केस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल।